क्योंकि मोदी साहब ने बड़ा क्लियर एक चीज बोली है जिसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा. So let's listen in. कर रहेगी. Friends, today 1 second. I think the volume is a bit low, man. Let me just get another one. Just hang on. Because मेरे को उनका इंग्लिश वाला जो उन्होंने बोला है मुझे उस पे बात करनी है because that's very specific. उन्होंने इंग्लिश में जो बोला है just yeah okay here we have it. 1 second. I'll just play this. Sorry guys, उसकी वॉल्यूम बहुत खराब थी तो हाँ. निहत से पर्यटक नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का साहस किया. मैं बहुत शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. You know, he said this and then after that एकदम से he switched into English, which is very very interesting. That is interesting because that is a messaging to the global powers. He switched to English to make it very clear to the rest of the world what India's intentions are, and we know what our intentions are. We're going to hit them. उसमें कोई है नहीं. ठीक है तो हिट कौन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं. कितना मारोगे यार? नहीं अभी कहाँ मारा, इनको तो अभी मारेंगे ना. अभी तो बहुत हल्का मार रहे थे. अब इनको सीरियसली मारेंगे. अब तो इनको सीरियसली मारेंगे. अभी तो शुरू हुआ है. Now they will be hit. एंड एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तानी बड़े रोते हैं ना CIA के बारे में. 93 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है ना 1993 ये पढ़ा है, ये देखा मैंने. डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि साहब पाकिस्तान एज अ कंट्री विल नॉट एग्जिस्ट इफ इंडिया गोज टू कॉन्फ्लिक्ट. अगर भारत ने अटैक करा पाकिस्तान देश बचेगा नहीं. तो जरा आपने CIA के this is the worst time for Pakistan to do anything like this. I'll tell you why. One, their global reserves their financial reserves are extremely low. They're at $9 billion. ठीक है, उसमें से भी $2.6 billion इनको पे आउट करना है इस साल. Second, their oil reserves are very low. Their refineries are only working at 58%. Pakistan Air Force के पास सिर्फ 3 दिन का फ्यूल, उसके ऊपर उनके पास फ्यूल नहीं है. Third, at a time when both Americans and the Chinese are not interested, China is not going to help them. The Chinese would be saying weaken them. The Iranians would be looking at it and saying let Pakistan get weakened because they are hobnobbing with the Americans. The Americans are very clear on our side. This is the worst time for Pakistan to carry out any sort of aggression towards India. And when the response comes, I don't think anybody is going to save Pakistan except maybe the Turkish. Let's see what the Turkish does. I don't see Turkish coming out in favor of Pakistanis openly and trying to do something. उनके अपने पैर भी जो है वो फंसे हुए मिडिल ईस्ट में. This is the worst time Pakistan is. This is suicide. This is literal Pakistani suicide. अब मुझे आप एक चीज बताओ. What was the point of getting these people behind you if you have to do it just because you want people support? तो people support करके मिलेगा क्या? What are you going to get out of it? लोग उल्टा गालियां ही देंगे. तुम्हारा आटा जो दिसंबर में खत्म होना था वो अब जाके जुलाई में खत्म हो जाएगा. That is what is going to happen. पानी तुम्हारा कट जाएगा. Because any shift, 85% of Pakistan's water comes from IWT. Any shift in flow of water in Pakistan is going to hurt them and hurt them bad. So they're going to get hurt on their economy. They are going to get hurt on their food. They are going to get hurt on their military. Their military is its weakest. इनके पास ना तेल है ना रिजर्व्स है, कुछ भी नहीं. तो चलाएंगे क्या? ये लड़ेंगे किससे? They are shitting in Pakistan right now. कि होगा क्या? वो शिटिंग वाला मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, बट पहले इनको सुन लेते हैं. ये हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के चौधरी अनवर उल हक. कहते क्या है जरा सुन लीजिए. इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े,
तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। मान गया ना? तो जरा इसको भी बताना यार, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या बोल रहा है? जो एक्चुअली है वो नॉन फैनेटिक है और उनका जवाब और वो उतना ही दिया जाएगा जितना वो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते तो हम जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मैच जवाब होगा तो बस फट गई ऑलरेडी। इनकी ऑलरेडी हालत खराब है, बट हम इनकी इतनी हालत खराब है, इनको ज्यादा भी नहीं देंगे, इनको लेकिन हमको और भी नहीं चाहिए। इनको सैफुल्लाह कसूरी को लाना पड़ा। सैफुल्लाह कसूरी ने बोला कि नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, जबकि टीआरएफ ने क्लियर विद इन 1 आवर इसमें किया और ऑलरेडी एंटीफाइड एक इसमें किया। ठीक है, तो इनकी इतनी बुरी हालत है। ना पाकिस्तान आर्मी अपने आप को बचा सकती है, ना लश्कर के टेररिस्ट को बचा सकती है। And I'll tell you, everybody is a fair. They are a fair game. All of them are a fair game. We just watch where they will be hit. मुझे ये बताओ, ये जो इसकी इतनी आंखों में आंसू आके इन लोगों ने वहां पर स्टेटमेंट तो दिलवा दिया, ठीक है, उससे सैफुल्लाह कसूर से कि भाई तो हमने नहीं करा, हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो वी आर वेरी सैड दैट दिस समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, दिस इज टेरिबल। तो ये आई मीन दिस इज, यू कैन कीप प्लेइंग दीस गेम्स, बट कितना टाइम खेलोगे? और No, but the point is, Lashkar being sad that this has happened. Lashkar-e-Toiba, who carried 2611 in Mumbai, you know why they did that? Because they know they are legitimate targets. Pakistani army ने बोला होगा जाओ कुछ बोलो, हमको बचाओ, हम नहीं कर सकते, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। They know they are going to get hit. They want to go and sit in underground tunnels. नहीं, अननोन गनमैन नहीं आने वाले, बहुत बड़ी चीज आने वाली है। अननोन गनमैन तो छोड़ ही दो आप, हमको पता है क्या आने वाला है। क्या हमको नौकरी से निकालोगे आप? देखते जाओ क्या आने वाला है। सो एलईटी भी इस वक्त जो है उसकी टांगे कांपती हैं। And the Pakistanis rhetoric, if I remember, when Bular Barrage was getting done, I think it was 2012, 2013. If I remember the year correctly, I don't remember the year correctly. LET लश्कर-ए-तौयबा का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें बुलर बराज पे इन्होंने बोला था कि हम जो है वाटर पे विल गो ऑन वॉर विद इंडिया। ठीक है, we will. So this is how critical this IWT was for them and is for them, and they want to go on war on this with us. Let them go on war. We are ready for them. The point is, तुम लड़ोगे किससे? छुरी कांटे लेकर आओगे वहां से? है क्या तुम्हारे पास? So let's go to war. If they want to go to war, we are ready for war. But if Pakistan thinks that they, and will Pakistani Air Force or Pakistani military defend Lashkar-e-Toiba men when we hit them in Pakistan? What does that signify? That Pakistani military is doing that? इतनी तो फटी हुई है। हमारा एक INS विक्रांत किसी ऑपरेशन से वापस आ रहा है, तुमने लाइव फायरिंग शुरू कर दी है अरेबियन सी के अंदर, तुम्हारी इतनी फट गई है। ठीक है, एंड फनी थिंग इज we started live firing in the sea and we've also started उनकी तरफ से फायरिंग हुई है और हमारी तरफ से भी प्रैक्टिस चल रही है। One INS विक्रांत is coming back और इनकी हालत इतनी खराब है। One INS विक्रांत, I mean can you imagine, this is the status, और ये बोलते हैं लड़ेंगे ये लोग। What do they have to fight? They have nothing. What do they have to fight? किससे लड़ेंगे ये लोग? They have nothing to fight with. One ship and you're starting bloody live firing exercises in the Arabian Sea. इतनी फट गई। The point is, how are they going to fight this? The point is, where are the resources? For fighting a war, you need resources. You need fuel. Where is the fuel? Your 4 out of 6 refineries, your 4 refineries are operating between 25 and 44% as of today. This is Pakistan's own report day before yesterday, what I'm quoting. एक रिफाइनरी इनकी है जो पाको रिफाइनरी है, वो 85 पर है. Second refinery was about at 65. But all the other 4 refineries are between 25 and 44%.
Accumulative जो इनका ये है, that is 58%. That is very interesting. And this is for jet fuel. ठीक है, this is jet fuel. So how are you going to fight a war when you don't have fuel? पानी पे उड़ाओगे कि सोलर पैनल लगाओगे? नहीं, पाकिस्तान में बड़े सारे सोलर पैनल है, ऐसे मत बोलो यार। हाँ तो उड़ाओ फिर सोलर पैनल लेके, जहाज उड़ाओ अपनी, रात को उड़ाना फिर सोलर पैनल, चांद की रोशनी। पाकिस्तान सोलर पैनल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, 9th जनरेशन फाइटर है वो। You know, that's something. Don't even get me started on that.